हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले कि हम इस वीडियो में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं एट द आउटसेट आपको दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो यही कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखने का कष्ट करें ताकि आपको मैटर की पूरी जानकारी हो, और दूसरा ये कि इफ़ इन केस यू फील सेटिस्फाइड विद द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। आज के वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न की चर्चा करेंगे। दिस प्रोविज़न इज कंटेन्ड इन सेक्शन 360 of the BNSS which relates to withdrawal from prosecution। एक पॉलिसी मैटर है, इसमें ले डाउन किया गया है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, इन्वेस्टिगेशन में कई नई बातें आ जाती हैं और उसमें ये रिवील होता है कि जो पहले एक्यूज्ड इन्वॉल्व किए गए हैं उनका शायद इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा उसमें, तो उनके खिलाफ आगे कार्रवाई बढ़ाने की बजाय उसको ड्रॉप करना या उससे विड्रॉ करना जो है वो राइट प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया गया है कि वो ये डिसीजन कर सकते हैं। बट देन देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच हैव टू बी सेटिस्फाइड बिफोर सच डिसीजन इज टेकन। I read out the provision first. The public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person, either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried, and upon such withdrawal. So, the prosecutor, he can take a decision to withdraw from the prosecution. But what are the conditions? First one is, it can be done with the consent of the court. Then second is before the judgment is pronounced. So when a trial is going on and judgment is yet to be announced, before that, with the consent of the court, the public prosecutor or the assistant public prosecutor in charge of that case, they may decide to withdraw from the prosecution of any person, either generally or in respect of any one or more of the offenses for which he is tried। तो जो वो ट्रायल चल रहा है, जितने भी ऑफेंसेस उसमें हैं, या तो जनरली पूरे उसमें वो विड्रॉ कर सकते हैं, या वन और मोर ऑफेंसेस जिनके लिए एक्यूज्ड इज बीइंग ट्राइड, प्रोसिक्यूटर जो है वो उससे विड्रॉ कर सकते हैं। इट इज बट नेचुरल दैट दिस डिसीजन हैज टू बी बेस्ड ऑन द सॉलिड मटेरियल which leads to the outcome that the prosecution decides to withdraw from the case, withdrawal from the prosecution, technically speaking. But then it can be done only if the judgment has not been pronounced and with the consent of the court. So once this withdrawal is allowed by the court, when the withdrawal from prosecution is complete in a way, then what shall be the effect of that? The effect shall be, if it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offense or offenses। अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो वो उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो भी ऑफेंस या ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोसिक्यूटर सबमिट्स टू विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, और क्लॉज बी कहती है कि इफ इट इज मेड आफ्टर ए चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड और व्हेन अंडर दिस संहिता नो चार्ज इज रिक्वायर्ड, या तो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं या चार्जेस की जो है वो
फ्रेमिंग जो है रिक्वायर्ड ही नहीं है, देन ही शैल बी एक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। तो वो उसका रिजल्ट भी जो है एक्विटल का होगा। मैं आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू के जो सेक्शन 359 है BNSS का, विच डील्स विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, उसमें भी कंपाउंडिंग का जो रिजल्ट है वो एक्विटल है। इसमें दो सिचुएशन है, इफ द विड्रॉल इज बिफोर द चार्जेस आर फ्रेम्ड देन द अक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड, and if it is after the charges have been framed or no charges are required to be framed, then the withdrawal results into acquittal. That shall be the effect. But one important condition is there, because the prosecutor, they can be appointed by the central government as well as the state government. So in this case, if the prosecutor has not been appointed by the central government and the matter relates to the executive power of the central government, the offense was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, or was investigated under any central act, or involved the misappropriation or destruction or damage to any property belonging to the central government, or was committed by a person in the service of the central government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. तो ये सारे के सारे कि अगर एक्यूज्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में उसने ये सब ऑफेंस किया है, या उसमें मिसअप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का है, या ऑफेंस को सेंट्रल एक्ट में इन्वेस्टिगेट किया गया है, या ऐसे मैटर से संबंधित है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है, तो इन सिचुएशन में, और इफ द प्रोसिक्यूटर हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब एक कंडीशन ये जरूरी है जो फुलफिल होनी है, वो ये है कि प्रोसिक्यूटर जो है कोर्ट को मूव करने से पहले विड्रॉल के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा, और साथ ही साथ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू आस्क टू डायरेक्ट द प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर इट। वो ये परमिशन जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की जो परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो परमिशन कोर्ट उसको कहेगा कि भाई मुझे मेरे सामने आप प्रेजेंट करो, तभी जाकर के कोर्ट जो है वो उसको विड्रॉल के लिए परमिशन ग्रांट कर सकता है। एक और जो नया प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है, विच वॉज नॉट देयर इन दी CRPC, provided that, last proviso है ये, provided further that no court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case। तो इसमें कोर्ट के लिए ये भी जरूरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि वो विक्टिम को भी सुने, एंड इट इज बट नेचुरल कि विक्टिम को जो है वो कोर्ट नोटिस करके बुला करके उसका पक्ष जानने की कोशिश करेंगी कि भाई what do you want to say? The prosecution has applied for withdrawal from prosecution, तो आपको क्या कहना है? And naturally, after hearing both the parties, the prosecutor as well as the victim, court फिर वो whether the court will decide whether it will give consent or it will deny. Naturally, if the consent is given, then the withdrawal is allowed, and once withdrawal from prosecution is allowed, then the consequences I have already mentioned. If it is before the charges are framed, then the accused is discharged, and if the charges have been framed or the charges are not required to be framed under this Sanhita, then the result shall be acquittal of the accused. तो आज के वीडियो में ये withdrawal from prosecution के बारे में कुछ डिटेल आपसे शेयर की गई है, प्रोविजंस एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आई होप दिस विल बेनिफिट यू। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।